गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय माझा? एकदा सांगा. ओके, ठीक आहे. कोण स्क्रीनशॉट घेतं आज? ओके, गुड मॉर्निंग. ओके, स्वराज. ठीक है, स्वराज जाधव. चलो तो चलो. नाउ वी आर डीलिंग विद टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, and in which we discussed about the alimentary canal in detail, its anatomy as well as its histology. That is, it contains mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. And we also discussed about the four wall of large intestine. Okay. Now, dosto, from today onward, we are going to discuss about the associated digestive glands. Now, what is meant by glands? Basically, glands क्या होते हैं? किसे कहेंगे glands? Just wait. और डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा आज का टॉपिक है, पर ग्लैंड का मतलब क्या है? टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड. In last lecture, we discussed about the four wall of alimentary canal. From outer to inner, these are serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer made up of thin mesothelium and connective tissue. That serosa is absent in esophagus. Behind the serosa or inner to serosa is muscularis. It is made up of smooth muscle cells. And in overall in alimentary canal, that muscularis layer, दोस्तों, contain inner circular and outer longitudinal muscles. Okay. But in stomach, there is an extra layer of muscle called as the oblique muscle layer is present inside the circularis. Okay, so stomach is a thick wall structure compared to other part of alimentary canal. फिर हमने देखा कि दोस्तों there is a submucosa. Submucosa is made up of loose connective tissue, and that submucosa contain blood vessel, lymphatic vessels, and nerves. Let's go. Submucosa contain loose connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels, and nerve. And in duodenum, submucosa also have दोस्तों Brunner's gland which secrete some mucus fluid. Then हमने देखा कि mucosa, जो mucosa है, it is the innermost layer of alimentary canal which lines the lumen of alimentary canal, और उसके अंदर होता है lumen. Now mucosa in stomach form irregular fold, उसे हम कहते हैं rugae, and that rugae contain gastric glands which secrete gastric juice, which contain enzyme, hydrochloric acids, and some other factors that are of the gastric juice. Then हमने देखा कि दोस्तों mucosa in small intestine have a small finger-like folding, उसे हम कहते हैं villi, and these villi are lined by microscopic cellular structure called as a microvilli, and these microvilli increases surface area of absorption tremendously. So this in small intestine, the epithelium of small intestine is because of that microvilli, there is a brush border appearance. So we call it as a brush bordered columnar epithelium. मैंने कल ये DPP में क्वेश्चन डाला था. Brush bordered columnar epithelium is present in small intestine. Small intestine. ये हमने देखा दोस्तों. And that mucosa of small intestine, अगर ये villi है, ये मेरे finger villi है, और बीच में जो space है, इसे कहते हैं crypts. और its crypts में digestive glands है, intestinal gland है, उन्हें कहते हैं crypts of Lieberkühn. उन्हें कहेंगे crypts of Lieberkühn which secrete the intestinal juice, और उस intestinal juice को कहते हैं succus entericus. ये हमने डिस्कस किया है. We discussed that in last lecture. तो आज हम बात करेंगे what are the digestive gland. दोस्तों क्या है ना, digestion is mechanical as well as biochemical process. Digestion is mechanical as well as biochemical process. एक ट्यूब है, हमारी बॉडी एक खुद ट्यूब है. ओके, और उसके अंदर एक ट्यूब है, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, GUT, या फिर गट और GIT. और
Digestion is a biochemical process, means it required enzymes for the digestion and or some other fluid and on some other substances also. So these enzymes, that fluid like bile, pancreatic juice, saliva, these are secreted by dosto some other glands like liver, pancreas, salivary gland. So what are these glands? What are the function of these glands? These glands secrete enzymes and other digestive juice to make digestion easier. तो इनका काम है digestive juice secrete करना digestive gland का. पहले तो what is meant by gland? Gland is any cell, tissue or organ which secretes some chemical. इसका मतलब वो हार्मोन ही secrete नहीं करेगा. What is meant by gland? आपको पता होना चाहिए कि gland का मतलब क्या है. What is meant by gland? Gland is it is a cell, single cell हो सकता है, a tissue, a cell, a tissue और a organ, कोई organ भी हो सकता है, which has ability of secretion of chemical, which has ability to secrete chemical, which has ability to secretes केमिकल, उसे कहते हैं दोस्तों केमिकल्स, उसे कहते हैं ग्लैंड, उसे कहते हैं ग्लैंड. एंड नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड? सो दीज आर द ग्लैंड्स दोस्तों, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करेंगे? व्हिच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस व्हिच कंटेन एंजाइम एंड अदर सीक्रेशन. सो व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड? these glands secretes or release, that is release digestive juice. और इस जूस की मदद से डाइजेशन होने वाला है. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनका ब्रेकडाउन होके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनने वाले हैं. तो दोस्तों ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है सिलेबस में, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है सिलेबस में, 3 टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड, 3 नाम है उनका डाइजेस्टिव ग्लैंड. एक है दोस्तों दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लिवर और तीसरा है पैनक्रियाज. याद रखो, एक है दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट दोस्तों सलाइवा. सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे? दे आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड दिस सलाइवरी ग्लैंड दोस्तों दे सीक्रेट सलाइवा. क्या करेंगे? दे सीक्रेट्स सलाइवा. लाळ सिक्रेट करता याला लाळ ग्रंथी म्हणतात. सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ बकल कैविटी. ओके, और इसके जो नाम है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके 3 टाइप्स है, उनके 3 पेयर्स है, ये कभी मत भूलो. दे आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. इस साइड पे 3 है और इस साइड पे 3 है, ऐसे 6 नंबर है पर 3 पेयर्स है. दीज आर नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड. ओके, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, लोकेटेड ऑन चिक. कहां पे है? लोकेटेड ऑन चिक. फिर दोस्तों दैट इज अ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. कोई लोग इसे सब मैक्सिलरी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी, और कोई बोलता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. और ये जो है दोस्तों सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोकेशन लिख रहा हूं, दैट इज अ बिलो लोअर जॉ, और लोअर जॉ के यहाँ पे है, लोअर जॉ मैंडिबल वहां पे लोकेटेड है ये, उसके भी नीचे. और नंबर 3 पे दोस्तों स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड वो है सब लिंगुअल ग्लैंड. और इस सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मींस बिलो और लिंगुअल मींस टंग, सो इट इज लोकेटेड बिलो द टंग, बिलो टंग. इसका लोकेशन है बिलो टंग. नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो ब्रैकेट एमसीक्यू, दीज आर द लोकेशन एमसीक्यू. ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है, टोटल नंबर है 6. राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3. ये भी क्वेश्चन पूछा था. दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड. क्या काम करते हैं? सीक्रेट सलाइवा. फिर दोस्तों लिवर, लिवर इज आल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी और इट इज आल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड है. इट सीक्रेट बाइल, इट सीक्रेट्स बाइल. ये बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट. ये बाइल सीक्रेट करता है लिवर. और फिर दोस्तों लास्ट में है 3 नंबर पे, ये हो गया लिवर, और 3 नंबर पे है पैनक्रियाज. ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज. ये कंपाउंड ग्लैंड है दोस्तों, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है और कंपाउंड ग्लैंड है पैनक्रियाज, याद रखो. ओके, ये हेटेरोक्राइन या फिर
कंपाउंड ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोक्राइन? हेटेरोक्राइन और कंपाउंड ग्लैंड मींस इसमें दो पार्ट आते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। हम डिटेल में जाएंगे, उसके दोनों पार्ट है। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरो मींस डिफरेंट, क्राइन मींस सिक्रेशन, मींस दो टाइप के सिक्रेशन करती है। एक होती है एक्सोक्राइन जो कि एंजाइम सिक्रेट करती है, और दूसरा दोस्तों एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रेट करती है। इसमें दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। लीवर क्या है? लीवर एक्सोक्राइन है। दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। नाउ जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, कुछ सिक्रेट एंजाइम्स। तो एक्सोक्राइन है सिक्रेट pancreatic juice. This exocrine part secrete pancreatic juice which contain enzymes. Which contain enzymes. Exocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दोस्तों, इट सिक्रेट हार्मोन, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट्स। मैं डिटेल में जाने वाला हूं, जस्ट फोकस ऑन दिस। इट सिक्रेट हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. Insulin and glucagon are secreted by pancreas. ग्लूकागॉन, इसको डिटेल में जाने वाले। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के क्या काम करते हैं? ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करेंगे? ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेंगे। सो दीज आर इन ब्रीफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है दोस्तों, इट हेल्प इन डाइजेशन, बाइल हेल्प इन डाइजेशन, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन. So these are the digestive juices: saliva, bile, and pancreatic juice. Saliva, bile, and this pancreatic juice. याद रखो, saliva, bile, and this pancreatic juice with enzyme. So these are the digestive juices. Okay, these glands secrete digestive juice, which make the digestion easy. This is slide number 1 दोस्तों. This is slide number 1. तो बात करते हैं नंबर 1 salivary gland के बारे में. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट. स्वराज, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का डिटेल में बात करेंगे क्या है तो. ओके स्वराज बेटा, स्क्रीनशॉट. ओके चलो. हार्मोन और एंजाइम में बहुत सारा फर्क है, बाद में बात करेंगे ना, आएगा वो, जब आएंगे तब बात करेंगे. बहुत सारा फर्क है. ओके, एंजाइम का एक्शन कैटालिटिक होता है, हार्मोन आइदर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी है. हार्मोन का रोल अलग है, एंजाइम का रोल अलग है. बात करेंगे, पर याद रखो दोनों सिलेबस में हार्मोन एज वेल एज एंजाइम. सो डाइजेस्टिव ट्रैक में बात करते हैं दोस्तों, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्लाइड नंबर 2 पे बात करेंगे, दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड. स्लाइड नंबर 2, दैट इज अ, नाम में ही उनका काम लिखा है, सलाइवरी ग्लैंड मींस दे सीक्रेट दोस्तों सलाइवा. सो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके ऊपर एमसीक्यू, इनका नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? दैट इज 3 पेयर्स. देयर आर 3 पेयर्स इन नंबर, या नंबर है दोस्तों 6 इन नंबर. 6 इन नंबर, दोनों का मतलब सेम है, 3 जोड्या किंवा 6 आहेत ते. 6 इन लोकेशन की बात करें तो हर एक लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सो दे लोकेटेड आउटसाइड द बकल कैविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड. दे लोकेटेड दोस्तों कैपिटल में लिखता हूं, आउटसाइड द बकल कैविटी. ये जो बकल कैविटी है आ, इसके बाहर है, आउटसाइड द बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं, और ओरल कैविटी के बाहर लोकेटेड है ये सलाइवरी ग्लैंड. दे आर लोकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी. एंड दोस्तों फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? नंबर हो गया, फंक्शन हो गया दोस्तों. दे सीक्रेट्स सलाइवा इनटू द बकल कैविटी. बकल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट करते हैं वाया डक्ट्स. तो कैसे बाहर है तो कैसा आएगा सलाइवा? सीक्रेट सलाइवा इनटू द बकल कैविटी वाया बकल कैविटी. वाया मींस थ्रू, वाया देयर डक्ट्स. उनके डक्ट्स होते हैं, देयर डक्ट्स, वाया देयर डक्ट्स. ओके, तो ये है दोस्तों 3 टाइप के 1 बाय 1 आपको सबको पता है. ओके, उनके जो टाइप्स है दोस्तों,
3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है, टाइप्स। नंबर 1 नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 फंक्शन, नंबर 4 टाइप्स। और वो है दोस्तों दैट इज पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड ऑन चिक्स। लोकेशन की बात करें, टाइप्स विथ लोकेशन, टाइप्स विथ लोकेशन, दैट इज वन बाय वन देखेंगे। पैरोटिड ग्लैंड्स दोनों साइड पे लोकेटेड ऑन चिक्स, लोकेटेड ऑन चिक्स जस्ट बिलो द दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ट्राइगस उसके नीचे यहाँ पे, ये है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, गाल फुगी तो होता ये फुकता चिक्स लोकेटेड ऑन चिक्स, दैट इज अ पैरोटिड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सब मैक्सिलरी, वही पॉइंट है, बार बार वही लिखेंगे, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। मैंडिबल मींस मैंडिबुलर, याद रखो लोअर जॉ, सो लोकेटेड ऑन लोअर जॉ, जो लोअर जॉ है वहां पे है लोकेटेड ऑन लोअर जॉ, ऑन लोअर जॉ। नंबर 3 सब लिंगुअल, लिंगुअल म्हणजे टंग, तो बिलो द टंग, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है, सो दीज आर लोकेटेड ऑन बिलो द टंग, लोकेटेड बिलो द टंग, सब लिंगुअल। याद रखो पैरोटिड लार्जेस्ट एंड सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है, पैरोटिड लार्जेस्ट सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? पैरोटिड जो है दोस्तों, ये जो है पैरोटिड, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड दैट इज पैरोटिड। सबलिंगुअल ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल। आगे चलते हैं। स्वराज बेटा घेतलं का स्क्रीनशॉट? ओके, दिस इज नंबर 2। ये क्या है? नंबर 2 वन बाय वन बात करेंगे विद डायग्राम, घेतलं का? ओके, चलो वन बाय वन। सोमवारपासून आपण सुरू करतोय नवीन, नवीन बॅच सोमवारपासून, मंडे पासून नवीन बॅच सुरू करतोय, मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगेल, जस्ट लिसन. ओके, मंडे पासून. सो सलाइवरी ग्लैंड, नंबर, लोकेशन, फंक्शन एंड टाइप विथ लोकेशन, ठीक है? Now, just wait. Salivary glands. Okay, जरा देखते हैं कैसा है। एक डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड की। नाउ प्लीज पे अटेंशन। मान लो ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, ये है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, ये है टंग। व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों टंग, ये है टंग। नाउ इस टंग के नीचे है, दैट इज टंग के नीचे ग्लैंड होती है जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये दोस्तों लोअर जॉ, तो यहाँ पे एक ग्लैंड है। ओके, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, याद रखो। तो ये जो है चिक के ऊपर, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द चिक। ये जो टंग के नीचे है इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड
तो दोस्तों ये है लोअर जॉ, ओके, ये लोअर जॉ है, और ये है दोस्तों दैट इज अ सब मैक्सिलरी, आइदर इसका नाम है सब मैक्सिलरी और इसका दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, याद रखो। और हर एक ग्लैंड की एक डक्ट है, हर एक ग्लैंड की एक डक्ट है दोस्तों, और द डक्ट ओपन इनटू ओरल कैविटी। मान लो ये ओरल कैविटी, इसकी डक्ट भी ओरल कैविटी में ओपन होगी, ओके, इसकी डक्ट भी कहीं ना कहीं से तो भी ओरल कैविटी में ओपन होगी, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, और इसकी भी ओरल कैविटी में ओपन होगी। तो हर एक ग्लैंड की एक डक्ट है दोस्तों। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। नाउ जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड दोस्तों, ये याद रखो, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है पर लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है, नंबर 1 हर एक पॉइंट। सबलिंगुअल ग्लैंड ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, दैट इज अ सब सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। और दोस्तों ये सब मैक्सिलरी के बारे में, इसके बारे में कुछ तो भी बोलो सर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय दिस, भले ये स्मॉल नहीं है, ये मीडियम साइज की है, पर मैक्सिमम सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? मैक्सिमम सलाइवा पर डे, मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय मैक्सिलरी, सिक्रेटेड बाय सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्स से याद रखेंगे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड सिक्रेट मैक्सिमम सलाइवा। ये तीन थोड़े से बाहर के एमसीक्यू आ सकता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेटेड बाय। नाउ ये ग्लैंड, इनके जो दोस्तों डक्ट है, ये लोकेटेड आउटसाइड द बकल कैविटी है, तो इनके डक्ट होते हैं, हर एक के डक्ट आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है दोस्तों स्टेनसन्स डक्ट। कैसा नाम है? स्टेनसन्स डक्ट। उसकी जो डक्ट होती है उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। ये जो मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ओके, इट ओपन इनटू द बकल कैविटी वाया वार्टन्स डक्ट। और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, इनके डक्ट का नाम है दोस्तों दैट इज अ रिविनस डक्ट, और डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं, रिविनस डक्ट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड की। तो ये दोस्तों ये हर एक ग्लैंड की एक डक्ट है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 टाइप का एमसीक्यू आएगा। इज दैट क्लियर? एंड वाया डक्ट ऑल दे रिलीज देयर saliva, salivary secretion into the buccal cavity. Is that clear? Is that clear? Okay, आगे बढ़ते हैं। दिस इज स्लाइड नंबर 3। ये डायग्राम समझ में आ रही है? तो दोस्तों मेरे चिक के ऊपर दोनों साइड पे है पैरोटिड ग्लैंड, ओके, मेरा जो टंग है उसके नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये जो मैंडिबल है उसके यहाँ पे है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नाउ ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो हम उसे कहते हैं मम्स। मम्स पता ना आपको? गालफुगी, गालफुगी इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, उसे कहते हैं पैरोटिडाइटिस। ये एमसीक्यू याद रखो। एक यहाँ पे नोट्स लिखता हूं, नोट्स, कि दोस्तों ये मम्स नाम का डिसऑर्डर है। व्हाट इज मम्स? मम्स जो है ये वायरल डिसऑर्डर है। व्हाट इज मम्स? इट इज एन वायरल डिसऑर्डर कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इट इज वायरल डिसऑर्डर, मम्स वायरल डिसऑर्डर, सिलेबस में है आगे चल के। डिसऑर्डर which causes inflammation means आग होने। इन्फ्लामेशन के 4 साइन, ओके, पेन, स्वेलिंग, टेम्परेचर एंड रेडनेस। इट कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये एमसीक्यू आएगा। पैरोटिड ग्लैंड, इट कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड नोन एज, अगर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है उसे कहते हैं पैरोटिडाइटिस। इटिस म्हणजे इन्फ्लामेशन, पैरोटिडाइटिस। मम्स मराठीमध्ये त्याला म्हणतात गालफुगी। और ये ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों, ये ऐसा वायरल डिसऑर्डर है, एक बार होने के बाद ये लाइफ में फिर कभी नहीं होता है। गालफुगी एक ही बार होता है और वो बच्चों में ही कॉमन है, मम्स। तो ये क्वेश्चन आएगा कि किस ग्लैंड का इन्फेक्शन है मम्स, किस ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है मम्स में? आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड। इटिस का मतलब हमेशा याद रखो दोस्तों, द मीनिंग ऑफ टर्म इटिस मींस इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, हेपेट मींस लिवर, इटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। सो मीनिंग ऑफ टर्म इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, हमेशा। इन्फ्लामेशन मीन्स त्याला प्रॉब्लेम येणे, म्हणजेच स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड टेम्परेचर बढ़ना। इट इज
Parotiditis means inflammation of parotid. Hepatitis, inflammation of liver. Nephritis, inflammation of kidney. Okay, encephalitis, inflammation of brain. Meningitis, inflammation of meninges. Okay, तो ये इटिस जहां पे भी आएगा वो इन्फ्लामेशन इंडिकेट करेगा। ये डायग्राम क्लियर है पैरोटिड ग्लैंड की। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम क्लियर है। ओके, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, कुछ एज का ऑकरेंस है दोस्तों, ये बिहेवियर होता है वायरस का। ओके, कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिसीजेस है किसी पर्टिकुलर एज में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उस एज में उस वायरस को मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है या कुछ नॉन इन्फेक्शियस भी डिसऑर्डर है, तो वो पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही ज्यादातर से पाए जाते हैं। तो मम्स इज चिल्ड्रन का डिसऑर्डर दोस्तों, मम्स, मीजल्स। मम्स कभी एडल्ट में नहीं होता है, और जब भी होगा बच्चों में तो एक ही बार होता है, बाद में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे कोविड का हमने देखा कि कोविड जो पहले फर्स्ट वेव में जो कोरोना वायरस है वो जो एल्डरली लोग हैं उनको इन्फेक्ट करा था। अभी सेकेंड वेव में थोड़े से 40 प्लस और 50, 40 या फिर 30 और 50 के बीच में जो लोग हैं उनको इन्फेक्ट करा है। और ये मानते हैं साइंटिस्ट कि अगर जब थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि वायरस खुद का नेचर और खुद का बिहेवियर चेंज कर रहा है। ओके, एज ग्रुप चेंज कर रहा है, ऐसा होता है डिपेंडिंग ऑन दैट इन्फेक्शियस एजेंट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो दीज आर द, ये इस साइड पे है 3 पेयर और उस साइड पे 3, तो टोटल नंबर है 6। नाउ क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू रिमेंबर दिस ग्लैंड, उस ग्लैंड को कैसे याद रखा जाए दोस्तों। तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि याद रखो, कैसे याद रखा जाए। तो सपोज ये है पैरोटिड ग्लैंड के लिए है स्टेनसन्स ग्लैंड। तो दोस्तों इसको जरा फोकस करते हैं। पैरोटिड में ना याद रखो, इसमें कहीं भी ना टी नहीं है, सिर्फ एक ही सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें टी है, वो है पैरोटिड ग्लैंड। और टेंसन्स ग्लैंड, इसको टेंशन ग्लैंड बोलेंगे, टेंशन। ओके, टेंशन, स्टेंसन्स नहीं, टेंशन, सिर्फ यस साइलेंट रखेंगे, टेंशन ग्लैंड। ओके, टेंशन डक्ट इज प्रेजेंट इन पैरोटिड ग्लैंड। ट को थोड़ा सा जोर देना है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट है टेंशंस डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट है टेंशंस डक्ट। ये क्लियर है? नाउ सर, हाउ कैन वी रिमेंबर मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वार्टन्स डक्ट? बहुत ही इजी है। ये जो वार्टन्स है ना, ये वार्टन्स, इसको ना उल्टा कर दो, मिरर इमेज बना दो, हो जाएगा यम। क्या हो जाएगा? यम। वार्टन्स को अगर यम कर दिया तो म्हणजे मैक्सिलरी या फिर मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये यम और ये वार्टन्स, ऐसा हो जाएगा। वार्टन डक्ट्स इज द डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, और ये डक्ट ऑफ रिविनस, ये आप इतना तो याद रख सकते हैं। डक्ट ऑफ रिविनस इतना तो आप याद रख सकते हैं ना कि ये सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है उसे कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, याद रखो। और रिविनस डक्ट, डक्ट ऑफ रिविनस और रिविनस डक्ट। ये क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? यस और नो बोलो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मेक एन हाइपोथेटिकल डायग्राम। ओके, हर कोई आउटसाइड द बकल कैविटी है। आप लगेगा टंग तो बकल कैविटी का पार्ट है, पर वो ग्लैंड आउटसाइड द बकल कैविटी है, बिलो दी फ्लोर है, टंग के भी नीचे है। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं। चलो बनाते हैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, जो कि किताब में नहीं है, मेरे दिमाग में है। और आपको भी ये हैबिट लगनी चाहिए टू मेक हाइपोथेटिकल डायग्राम, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे इजी हो जाती है। इन सब का काम क्या है? सलाइवा। तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सीक्रेट मैक्सिमम सलाइवा। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। मान लो ये है दोस्तों, दिस इज एन, मान लो ये है बकल कैविटी। मानने में क्या जाता है? मान लो ये है बकल कैविटी। ये क्या है? ये है बकल कैविटी। ना इस बकल कैविटी में दोस्तों ये है, मान लो दिस इज एन, ये है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है। और यहां से एक डक्ट आती है, उस डक्ट और बकल कैविटी में ओपन होती है। इस डक्ट का नाम है दोस्तों स्टेनसन्स डक्ट। चलो कौन सी डक्ट है ये? स्टेनसन्स डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन्स, स्टेनसन्स डक्ट, जो कि पैरोटिड ग्लैंड से आती है। इमेजिन करना है
आप बोलोगे सर इधर उधर है, इमेजिन करो, कोई बात, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। नाउ ये दोस्तों दैट इज कौन सी ग्लैंड? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या नाम है उसका? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये है। उसकी डक्ट क्या है? उसके डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। उसके डक्ट का नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट। क्या नाम है उसके? वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ऐसे याद रखें। नीचे से एक डक्ट लेके आते हैं और एक ग्लैंड भी बनाते हैं। तो ये जो ग्लैंड है यहाँ पे ये है, मान लो दैट इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या ग्लैंड है? ग्लैंड का नाम क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। और इस डक्ट का नाम है दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रिविनस। समझे आप? और व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है बकल कैविटी और ओरल कैविटी, बकल और ओरल कैविटी। समझे आप? सो दीज ग्लैंड आर लोकेटेड आउटसाइड द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट सलाइवा। क्लियर है? सलाइवा सिक्रेशन क्या होता है बाद में देखेंगे, स्क्रीनशॉट। ओके, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है। ओके, मुझे ये आपको दिखाना है कि कौन से डक्ट का कौन सा ग्लैंड है, और मुझे ये आपको बताना है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है दोस्तों दे आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड। ओके, एक साइड से ऐसे 3 है और दूसरे साइड से ऐसे 3 होंगे, टोटल नंबर ऑफ 6 है। ये कोई डायग्राम ऐसे अरेंजमेंट नहीं है उनकी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। इसमें एक ही दो ही पर्पज है कि ये ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर नहीं तो बाहर है, और उनका जो सिक्रेशन होता है सलाइवा वो डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में सिक्रेट करते हैं। और पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है टेंसन्स डक्ट, टी से याद रखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, टेंसन्स डक्ट, डक्ट ऑफ रिविनस, सबलिंगुअल ग्लैंड, और डब्ल्यू को हम यम कर दिए तो हो गया दोस्तों मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ग्लैंड, दैट इज अ सब। ये इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है। ओके डन, आगे चलते हैं। ओके डन, ओके चलो स्वराज, थैंक यू। सो दिस इज अबाउट, और डक्ट के नाम कैसे याद रखेंगे मैंने ये भी बोला है दोस्तों। ये सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम है, वो बाद में बात करेंगे। कुछ एंजाइम है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, कुछ आयंस होते हैं, तो ये भी याद रखो दोस्तों। नाउ बात करते हैं लीवर की, बात करेंगे लीवर की। लीवर जो है दोस्तों स्लाइड नंबर 5, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ बॉडी। लीवर जो है इसका दूसरा नाम है हेपेटिका, हेपेटिका इसका दूसरा नाम है, ग्रीक वर्ड हेपेटिका, लीवर। और इसका इन्फ्लेमेशन होता है तो बोलते हैं हेपेटाइटिस। नाउ इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी दैट इज लीवर। खास करके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस जिन्हें डक्ट होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन मींस जिन्हें डक्ट नहीं होते उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। पोस्टमार्टम करते वक्त मैंने कई बार इस लीवर को देखा है, अपने हाथ में लिया है दोस्तों। कोई इंजुरी है क्या? कुछ नहीं, मैंने मेरे हाथों से चेक किया है। ये जो लीवर होता है ये बहुत ही बड़ा ऑर्गन है सॉरी एब्डोमिनल कैविटी का। इसका वेट अगर हम देखें, वेट इट इज 1.2 to 1.5 kg in human adult, in human adult, adult की वेट की बात कर रहा हूं। ये इसका वेट क्या होता है दोस्तों? इसका वेट है 1.2 to 1.5 kg in human adult, that is weight of liver। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन कहां पे? इट इज लोकेटेड इन दोस्तों दैट इज अ राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी। ओके, स्टमक कहां पे होता था? दैट इज लेफ्ट अपर या फिर अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, और ये है कहां पे? राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, सो दोस्तों नीचे भी जा सकता है, पर इट इज लोकेटेड ऑन द राइट अपर पार्ट। लोअर पे थोड़ा पार्ट होगा पर मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट है राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे लिवर होता है, एब्डोमिनल कैविटी। ये याद रखो, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिलो दी ये डायग्राम है,
ये एमसीक्यू, जस्ट बिलो द डायफ्राम। जो डायफ्राम एक मसल है व्हिच डिवाइड द थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक मसल है दोस्तों डायफ्राम, सो जस्ट बिलो द डायफ्राम है लीवर, ये एमसीक्यू, जस्ट बिलो द डायफ्राम, याद रखो, जस्ट बिलो द डायफ्राम, कौन, लीवर, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ओके, डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम, दैट इज लिवर, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ये क्वेश्चन में आता है। लोकेशन, लोकेशन दोस्तों, नाउ इसके जो लोब होते हैं 1 2 3 4, जो नंबर ऑफ लोब्स है आपके लेवल पे याद रखो, देयर आर टू, इट हैज टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट, इट हैज टू लोब्स, इट हैज टू लोब्स दोस्तों, एक होता है राइट लोब ऑफ लिवर और दूसरा दोस्तों दैट इज अ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट लोब और दोस्तों लेफ्ट लोब, याद रखो, राइट लोब और लेफ्ट लोब। सपोज ये कुछ डायग्राम इस तरीके से है, ये है सपोज लिवर, महाराष्ट्राचा नकाशा आणि लिव्हर जरा सारखं दिसतं बघा, ये है लिवर दोस्तों, लाइक दिस। तो यहां से मान लो कि राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होगा, ये ऐसा डिवाइड हुआ है लिवर, तो ये है दोस्तों राइट लोब, जो राइट साइड पे होगा ऐसा, ये ऐसा है, तो इस साइड पे राइट साइड पे होता है। आपको ये पाल्पेट करने सिखाया जाता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही, फिजियोलॉजिकल में, फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वहां पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि लीवर को कैसे पाल्पेट किया जाए, उसकी मेथड क्या है। तो दोस्तों ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब, ये है राइट लोब और लेफ्ट लोब, ऐसे दो लोब होते हैं। सो नंबर ऑफ लोब दोस्तों, द नंबर ऑफ लोब इट दे आर टू, it has two lobe, it has दोस्तों two lobe, that is right lobe and left lobe, याद रखो, right lobe and left lobe। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द लिवर, इसके फंक्शन वगैरह हम डिटेल में जाने वाले, पर जस्ट रिमेंबर दिस, ये कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द लिवर, इज दैट क्लियर। स्क्रीनशॉट, स्वराज स्क्रीनशॉट, ओके, ये सब एमसीक्यू है। लोकेशन, वेट, लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या, ओके ओके, लोब मींस पार्ट, लोब मींस पार्ट होते हैं, लोब का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड है, ओके, एक बड़ा सा होता है, आपको दिख रहा है कि राइट लोब इज अ लार्जर एंड लेफ्ट लोब इज अ स्मॉलर। ये राइट लोब जो है दोस्तों ये लार्जर है, ये लार्जर है, और ये जो लेफ्ट लोब है वो स्मॉलर है, साइज में थोड़ा सा स्मॉलर है। और यहां से एक डक्ट आती है मान लो, और यहां से डक्ट रिलीज होती है दोस्तों, यहां से रिलीज होगी राइट हेपेटिक डक्ट, और यहां से रिलीज होती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये भी याद रखो, और जो के दोनों जाके मिलते हैं और बनते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, वो आगे हम बात करेंगे, ओके, वो हम आगे बात करेंगे, पर ये जस्ट रिमेंबर इट हैज टू लोब्स, लीवर को दो लोब्स है, ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो थायराइड ग्लैंड है, वो बाद में बात करेंगे। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो वो पैरोटिड ग्लैंड है। वेट याद रखो 1.2 to 1.5 kg। लोकेशन याद रखो, नंबर ऑफ लोग। आगे चलते हैं, लिवर के बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। आता चलो अच्छे से, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर ये फेल होता है तो डेथ ही होती है आदमी की। लिवर फेलिवर अच्छा नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ओके, उनमें बहुत सारी रीजनरेशन पावर होती है, ओके। इसका फंक्शन में डिटेल में बाद में बात करूंगा कि फंक्शन ऑफ लिवर क्या है, ओके। पहले हम जो सिलेबस में दिया है उसके बारे में बात करते हैं, ओके, जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ ये जो लिवर है दोस्तों, स्लाइड नंबर 6, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं याद रखो दोस्तों, लोब एक बड़ा पार्ट है और उसमें छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं लोब्यूल्स। ट्यूब एक बड़ा पार्ट है, उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्यूब्यूल्स। जरा लक्षण है, वैसे दोस्तों लोब बड़ा है, उसमें छोटे छोटे पार्ट है, उन्हें कहते हैं लोब्यूल्स। ट्यूब एक बड़ा पार्ट होता है, हमेशा याद रखो, उसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन्हें छोटे छोटे डक्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और ऐसे कैसे पार्ट है, और बोलो दोस्तों, लोब, लोब्यूल्स, ट्यूब, ट्यूब्यूल्स, ओके।
ये बहुत ऐसा होता है। ओके, तो ये याद रखो। तो लोब्यूल, लोब और उसमें छोटे पार्ट है उन्हें कहते हैं लोब्यूल्स। और ये जो हेपेट जैसे ट्यूब उसमें ट्यूब्यूल्स। मान लो कि एक लोब है, मान लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। ये लोब्यूल्स क्या कॉन्सेप्ट है। मान लो ये दो लोब है लिवर के, चला हाइपोथेटिकल डायग्राम होने, ये लिवर कुछ ऐसा है। ये मान लो दो लोब है, ये है दोस्तों मान लो, सॉरी लेफ्ट लोब जो छोटा है, लेफ्ट लोब, और यह है राइट लोब। लोब म्हणजे उसका पार्ट, लोब मीन्स उसका पार्ट। नाउ यहां पे छोटे छोटे लोब्यूल्स है इसमें। ओके, एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूं। ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स है इसे कहेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स, या ऐसे यहां पे ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स है। लोब का छोटा पार्ट यानी लोब्यूल्स, समझे? लोब्स का छोटा पार्ट यानी लोब्यूल्स। लोब बड़ा पार्ट है और उसका छोटा पार्ट यानी लोब्यूल्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट? लोब का छोटा पार्ट होता है लोब्यूल्स, कभी भी याद रखो। मान लो दोस्तों ये है ट्यूब, एक समझाता हूं, एक ये है ट्यूब। ओके, ये बड़ी सी ट्यूब है, बड़ी सी ट्यूब है, और फिर दोस्तों इसके बड़ी सी ट्यूब है, और फिर ये कुछ ऐसे यहाँ पे मिलके ऐसे छोटे छोटे ट्यूब बना रहे हैं। तो ये हो गए दोस्तों ट्यूब्यूल्स। ये बड़ी वाली ट्यूब हो गई, पर ये क्या हो गए? ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहेंगे? ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ट्यूब्यूल्स। समझा आप? ये कॉन्सेप्ट है ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब और ट्यूब्यूल्स ये छोटे छोटे शब्द हैं। ये दोस्तों बड़ी वाली ट्यूब, और व्हाट आर दिस? दीज आर द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। वैसे ही लोब, लोब्यूल्स, समझे आप? वैसे ही होता है दोस्तों ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स, ट्यूब, ट्यूब्यूल्स। ओके, मोल मॉलिक्यूल नहीं, गलत, वो नहीं है। ओके, ठीक है, समझे? ये छोटा सा पार्ट है ना। ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, लोब के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, उनमें हेपेटोसाइट होती है, जिन्हें कहते हैं लिवर सेल। दीज हेपेटिक लोब्यूल्स दोस्तों, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। एमसीक्यू, हेपेटिक लोब्यूल्स, ये बहुत फेमस एमसीक्यू दोस्तों। हेपेटिक लोब्यूल्स, ओके, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ओके, हेपेटिक लोब्यूल्स जो है, हेपेटिक लोब्यूल्स, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मींस ये समझाता हूं, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। म्हणजे इसी में सब काम होता है और इसी से लिवर बना भी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, यूनिट ऑफ लिवर। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है दोस्तों कि लिवर इसी से बना है, और फंक्शनल का मतलब है कि इसके इसी में सब फंक्शन होता है, जो मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट होगा। दोस्तों इट कंटेन, हेपेटिक ग्लोब्यूल कंटेन, इट कंटेन हेपेटोसाइट, इट कंटेन्स हेपेटोसाइट म्हणजे लिवर सेल हो। हेपेटोसाइट म्हणजेच लिवर सेल, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन हेपेटोसाइट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये भी क्वेश्चन होता है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स म्हणजे थ्रेड, दोरा। ओके, लाइक दिस, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये भी एक एमसीक्यू, किस फॉर्म में अरेंज है? कॉर्ड, कॉर्ड म्हणजे दोरी। ओके, तो ऐसे हेपेटोसाइट अरेंज होते हैं दोस्तों हेपेटिक लोब्यूल्स में। मैं इसकी हाइपोथेटिकल डायग्राम बना ही लेता हूं, और फिर बाद में दोस्तों एक है, दैट इज अ ग्लिसन्स कैप्सूल। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्लिसन्स कैप्सूल? ये क्वेश्चन आता है। ये ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है दोस्तों? इट इज अ थीन connective tissue sheath. It is a covering of thin connective tissue which covers दोस्तों hepatic lobules को कवर करने वाला होता है, that is a Gleason's capsule, याद रखो। ओके, ओके, Gleason's capsule, ये Gleason's नाम के आदमी ने डिस्कवर किया है। तो हेपेटिक लोब्यूल्स, दैट इज दोस्तों each hepatic lobule, each hepatic lobule, each hepatic lobule is covered by तीन इंपॉर्टेंट फीचर। थीन कनेक्टिव टिश्यू, थिक का थीन, थीन कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, थीन कनेक्टिव टिश्यू शीथ।
नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। सिर्फ और सिर्फ ये लीवर में ही पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों ग्लिसन्स, नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, यानी इसलिए नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। एमसीक्यू, कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, दैट इज अ कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। तो अगर मैं हेपेटिक लोब्यूल की एक डायग्राम भी निकालूं दोस्तों, अगर मैं हेपेटिक लोब्यूल की एक डायग्राम भी निकालूं, मान लो ये है हेपेटिक लोब्यूल, तो उसमें दैट हेपेटिक लोब्यूल में इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, उसमें जो है दोस्तों दैट हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड जैसे अरेंजमेंट लाइक दिस, हेपेटोसाइट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड लाइक दिस, मान लेते कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट। दीज आर द हेपेटोसाइट लिवर सेल विद सीक्रेट, बहुत सारे बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस, बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, ओके हेपेटोसाइट, और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करते हैं, फंक्शन ऑफ लिवर हम आगे देखेंगे। तो यह है दोस्तों हेपेटिक लोब्यूल्स। नाउ दिस हेपेटिक लोब्यूल्स, इट इज कवर्ड बाय अ थीन शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसे कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल, दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल, सॉरी, ये जो कवरिंग है इसे कहेंगे दोस्तों ग्लिसन्स कैप्सूल। सो प्लीज रिमेंबर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है हेपेटिक लोब्यूल। ये हमने हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाई, उसकी जो कवरिंग है उसे कहते हैं दोस्तों ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल म्हणजे कवरिंग, हा कधी पण लक्ष रखा, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो है मान लो ये क्या है, हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ये भी लोग याद रखो, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड। ये क्लियर है, इज दैट क्लियर, ओके, ये क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट, ये क्लियर है का सांगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दिसतंय बेटा, क्लियर है ना, ये जो है ये हेपेटिक लोब्यूल है एक, दिस इज एन हेपेटिक लोब्यूल्स। इस हेपेटिक लोब्यूल में एक हेपेटिक लोब्यूल है मान लो, उसमें ये है दोस्तों हेपेटोसाइट या लिवर सेल, ऐसे कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज है मान लो, सॉरी जरा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जरा अलग तरीके से लिखा था। मान लो ये है हेपेटोसाइट, दे आर अरेंज लाइक अ कॉर्ड, ये है हेपेटोसाइट, ऐसे मान लेते हैं, ये लिवर सेल है, थ्रेड लाइक अरेंजमेंट है, ओके, ये है लिवर सेल, दीज आर द लिवर सेल, और उसका जो कवरिंग है दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल। और ऐसे कई सारे लोब्यूल है लिवर में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, समझे, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स है लिवर में, ओके इन, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। और लिवर के जो भी काम है, मेटाबॉलिज्म है या फिर बाइल सिक्रेशन होगा या फिर कुछ एंजाइम्स बनते हैं, कुछ प्रोटीन बनते हैं, ऑल दीज आर सिंथेसिस, ऑल दीज ऑकर इन दिस हेपेटिक लोब्यूल्स, कळतंय का, ऑल दीज ऑकर इन हेपेटिक लोब्यूल्स। आगे ठीक आहे, कळायला लागले मी काय बोलतोय, तर येते लक्षात, यस और नो, यस और नो, डन, ओके ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सिंपल है रे, 3 वाक्य, हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मींस लिवर का बेसिक स्ट्रक्चर है हेपेटिक लोब्यूल्स, और उसी में सब काम होते हैं, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है, इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ओके। उनमें हेपेटोसाइट लिवर सेल होते हैं, और उसके जो कवरिंग है हेपेटिक लोब्यूल की, उस कवरिंग को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और उसका नेचर कैसा है, ये थीन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक शीट है, शीट मींस कवरिंग। ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों लिवर के बारे में, स्लाइड नंबर 9, दैट इज द कफर सेल। कफर सेल के बारे में बात करते हैं, कफर सेल्स, पूरा एक स्लाइड यूज करें, कफर सेल। सो दोज दीज आर दोस्तों macrophages cell, these are the phagocytic cell present in liver, these are phagocytic immune cell होते हैं, phagocytic
इम्यून सेल है, इम्यूनिटी के सेल है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट इन लिवर। फैगोसाइटिक मींस इनगल्फ करते हैं पैथोजन को, प्रेजेंट इन लिवर, दैट इज कफर सेल। नंबर 1, एक्चुअली these are macrophages of liver, actually these are macrophages। आपको पता चलेगा ये macrophages क्या है बाद में, पर याद रखो these are macrophages of liver। एक सेल होते हैं macrophages, ओके। हर एक ऑर्गन में इसका नाम अलग अलग है, तो लिवर में उसका नाम है कफर सेल। एंड दोस्तों ये क्या करते हैं, दे इनगल्फ, फैगोसाइटिक म्हणजे खाने, इनगल्फ द पैथोजन एंड फॉरेन बॉडीज, engulf and kill the pathogen. They engulf and kill the pathogen. Engulf and kills the pathogen. पैथोजन को खत्म करते हैं। कफर सेल इम्यून सेल है, ये किस में होते हैं, लिवर में होते हैं, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये होते हैं लिवर। नाउ लिवर इज द मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन। लिवर जो है दोस्तों, लिवर इज मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ बॉडी, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी। मेटाबॉलिक ऑर्गन मींस जो भी ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, मींस ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में लिवर में होता है, ये सब है दोस्तों। और द हेपेटोसाइट ऑफ लिवर, जो हेपेटोसाइट है डाइजेशन में ऑफ लिवर दोस्तों, सीक्रेट, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बाइल जूस, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बाइल जूस। ये हेपेटोसाइट्स में बनता है लिवर के। हेपेटोसाइट मींस लिवर सेल, साइट CYTES म्हणजे लिवर सेल। ये उसका काम है, बस इतना ही याद रखो, ओके। ये उसका काम है, बस इतना ही याद रखो। इज दैट ओके? ये क्लियर है? आगे चलते, ये क्लियर है? स्लाइड नंबर 9, इज दैट क्लियर? कफर सेल, स्लाइड नंबर 8 है कफर सेल, सॉरी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये है कफर सेल, ये इम्यून सेल ऑफ लिवर आ जाएगा। फैगोसाइटिक मींस ओके द सेल व्हिच इनगल्फ द पैथोजन, उन्हें कहते हैं फैगोसाइट। पैथोजन इनगल्फिंग, पैथोजन उसे पैथोजन इनगल्फ म्हणजे गिळणे, पैथोजन इनगल्फिंग सेल उसे खा के खत्म करते हैं, इनगल्फिंग सेल्स उसे कहते हैं दोस्तों फैगोसाइटिक सेल्स, उसे कहते हैं फैगोसाइट और फैगोसाइटिक सेल। हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस वैसे होते हैं, और ये मैक्रोफेजेस नाम की सेल ब्लड के ही सेल है, अगर लिवर में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कफर सेल। ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है दोस्तों, ये बता देंगे धीरे धीरे, याद रखो, फक्त जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा, कुछ ना। कंसिडर दिस बायोलॉजी एज सम लाइक सम टॉपिक एज अ सस्पेंस मूवी, ओके। धीरे धीरे वो कैरेक्टर आपको जब बाद में बार बार स्क्रीन के ऊपर आता है तो आपको पता चलता है, अरे ये इसका भाई है, ये इसकी वाइफ है, अरे ये उसका बेटा है, ये उसकी लड़की है, और ये इसका इनेमी है, ये इसका दोस्त है। सब अभी बताएंगे तो पूरा बायोलॉजी भी पढ़ेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। मान लो मैक्रोफेजेस एक इम्यून सेल होते हैं, यही याद रखो, ओके। इम्यून सेल है, ल्यूकोसाइट है वो एक टाइप की, इज दैट क्लियर? पर वो टिश्यू में होते हैं, याद रखो, ओके। ये आएंगे मैक्रोफेजेस एंड ऑल दैट, क्योंकि हर कोई पॉइंट, हर एक शब्द उसी स्लाइड में एक्सप्लेन करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है, तो बता देंगे। नाउ एक डायग्राम दी है दोस्तों, ये हो गया लिवर, फिर आता है दैट इज अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की बात करेंगे छोटी सी। एक गॉल ब्लैडर क्या है दोस्तों? थीन मस्कुलर सैक है। इट इज, ये बहुत एमसीक्यू आता है, थीन है या थीक है? ये थीन मस्कुलर सैक है, इसके ऊपर फोकस करो। फाइबरस है क्या है? इट इज अ थीन मस्कुलर सैक, ओके, लाइज जस्ट बिसाइड द लीवर, लाइज जस्ट बिसाइड और बिलो द लीवर, बिसाइड और बिलो होता है, बिसाइड द लीवर या फिर जस्ट बिलो द लीवर, जस्ट लाइज बिलो द लीवर, दैट इज गॉल ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? और एक दूसरा पॉइंट, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। इसकी जो डक्ट है दोस्तों, इसकी जो डक्ट है गॉल ब्लैडर, उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। उस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। मैं ना बेस बना रहा हूं, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, एक डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करना है, उसका मैं बेस बना रहा हूं, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। और फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होता है दोस्तों?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? स्टोरेज। ये जो लीवर में से बाइल बनता है ना, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लैडर में स्टोरिंग ऑर्गन होता है। गोडाउन जैसा है, स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। एमसीक्यू क्या है फंक्शन? स्टोरेज तो है, स्टोरेज एज वेल एज उस बाइल को कॉन्सेंट्रेशन करना। बाइल क्या है? एक जूस है येलो कलर का। स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, ये फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। किसी एमसीक्यू में आएगा सिर्फ स्टोरेज है ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, दोनों फंक्शन है गॉल ब्लैडर के। और उसके डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, ये भी एक फेमस एमसीक्यू। उसके डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? नाउ दोस्तों मुझे और एक ऑर्गन एक्सप्लेन करना है, दैट इज अ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, मैं इनके फंक्शन के बारे में सब बाद में बताऊंगा। ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों। इट इज अ हेटेरोक्राइन और कंपाउंड ग्लैंड। हेटेरो मींस डिफरेंट, क्राइन मींस सिक्रेशन, टू डिफरेंट टाइप की सिक्रेशन करती है, या फिर इसे कंपाउंड ग्लैंड भी कहा जाता है। कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड। इट हैज अ टू पार्ट, एक्सोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंड एक्सोक्राइन प्लांट secrete hormone and endocrine plant secrete दोस्तों, that sorry, exocrine plant secrete enzyme, endocrine plant secrete hormone. Pancreas, it is a heterocrine gland. जरा लक्षात है। दो चीजें, डक्ट्स ऑफ पैनक्रिया, इसके दो डक्ट्स हैं। एक बेस बना रहा हूं, मुझे एक डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। उसके दो पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट, इसके पहले मैंने बोला था इट सीक्रेट एंजाइम्स, और दूसरा है एंडोक्राइन पार्ट विच सीक्रेट हार्मोन्स। ये भी डिटेल में जाएंगे इसके फंक्शन में, जस्ट वेट। नाउ जो एक्सोक्राइन पार्ट है दोस्तों, सीक्रेट एंजाइम्स, सीक्रेट्स एंजाइम्स, सीक्रेट एंजाइम्स। और द एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट दोस्तों, दैट इज सीक्रेट्स हार्मोन्स, हार्मोन्स। इसके जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज हैज अ टू डक्ट। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के दो डक्ट होते हैं। ओके, एक्सोक्राइन पैनक्रिया के दो डक्ट होते हैं, हैज टू डक्ट्स, दो डक्ट्स है इसके। एक है विरसन डक्ट और दूसरा दोस्तों सैंटोरिनी डक्ट। एक है विरसन डक्ट, एक है सैंटोरिनी डक्ट। जस्ट वेट, विरसन डक्ट आणि सॅन्टोरिनी डक्ट, फक्त लक्षात ठेवा हे सगळं एक्सप्लेन करणार आहे। विरसंग डक्ट, क्या नाम है? विरसंग डक्ट, जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, मेन जो डक्ट है उसे कहते हैं विरसंग डक्ट। और जो एसेसरी डक्ट है, मीन्स इतना कुछ मेन नहीं है, एसेसरी डक्ट, उसको कहते हैं सैंटोरिनी डक्ट। जस्ट याद रखो, जस्ट याद रखो ये। ओके, और ये पैनक्रिया है लोकेटेड इन सी शेप्ड डिओडेनम के बीच में होता है पैनक्रियास। जो सी शेप्ड डिओडेनम है वहां पे पैनक्रिया लोकेटेड होता है। आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 9, दिस इज द स्लाइड नंबर 9। कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी में टाइम चला गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। ये बेस बनाया है, एक डायग्राम है आपके बुक में, और वो जो डायग्राम वहां पे दोस्तों डक्ट सिस्टम दी है। आप अगर पढ़ोगे तो हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, डिओडेनम का एक पार्ट दिया है, पैनक्रिया दी है। तो वो जो डायग्राम है उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो बेसिक आपको चीजें पता होने चाहिए कि लीवर क्या है, ये कि गॉल ब्लैडर से लीवर, गॉल ब्लैडर लीवर से रिलेटेड एक छोटा सा स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर, और फिर पैनक्रियाज क्या है। तो इसके बारे में हम फंक्शन में डिटेल में जाएंगे, और आज यही रुकते हैं दोस्तों, यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वो जो डायग्राम है बात करेंगे दोस्तों, कल कुछ क्या टर्मिनोलॉजी है, कल बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय हेपेटिक डक्ट, व्हाट इज मीन बाय कॉमन हेपेटिक डक्ट, व्हाट इज मीन बाय कॉमन बाइल डक्ट, what is meant by cystic duct, what is meant by hepatopancreatic duct, what is meant by ampoule of Vater, what is meant by sphincter of Boyden, what is meant by sphincter of Oddi, what is meant by duodenum का सेकंड पार्ट, duodenum का सेकंड, सॉरी duodenum क्या होता है और उसमें कैसे दोस्तों
ये सॉरी पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस इंटर करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर धीरे धीरे हम वापस लीवर के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शन क्या है, पैनक्रिया के बारे में जानेंगे, उनके फंक्शन क्या है। तो ऐसे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिटेल जानने के बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे डाइजेशन। आज नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही अब तक हमने फंगाई पढ़ा है, पर आज जो टॉपिक है वो नया ही टॉपिक है, वायरसेस। तो आप आज से शुरू कर दो दोस्तों वायरसेस के, आप इससे कुछ पिछला बेसिक नहीं चाहिए कुछ भी, ये नया टॉपिक है तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो वायरसेस में वैसे तो वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर सिलेबस में जितना दिया है उतना ही हम डिटेल में देखेंगे, और जो जो वायरसेस इधर उधर दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इधर उधर मीन्स 12th में या फिर दूसरे बुक में। इज दैट क्लियर? वीरोइड्स के बारे में जानेंगे, प्रायंस के बारे में जानेंगे, और ये 2 दिन तक लेक्चर चलेगा, मैक्स 2, आज या फिर कल। किंगडम प्लांटे में भी एक किंगडम प्लांटे और एनिमलिया का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इस टॉपिक में, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप उस पार्ट को एक पेज है उसको स्किप कर दो, मैं जब किंगडम प्लांटे में डिस्कस करेंगे तब वो पार्ट डिस्कस करेंगे, और किंगडम एनिमलिया में एनिमलिया का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं वायरसेस के साथ, ठीक है? थैंक यू। जो कुछ लोग बोल रहे सर नया बैच बनाओ, तो बच्चों 2 ही दिन बाकी है, 2 ही दिन, आज का दिन और मंडे का, तो हम नया ही टॉपिक शुरू करते हैं। नया बैच बनाने से अच्छा है कि नया टॉपिक शुरू करो, है ना? तो कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं, और 2 दिन में मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, 2 ही दिन है। और आपका ये जो टॉपिक मिस हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और डाइजेशन यहाँ का भी, तो हम ये भी कवर कर लेंगे, पर उसको समय दे दो थोड़ा सा। बच्चे आ रहे हैं अभी भी, तो हर बच्चों को ज्वाइन करने के बाद हर बच्चों को मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो मैं 1000 बार पढ़ाऊंगा तो वो भी प्रॉब्लम और दिक्कत आ जाएगी, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सब बच्चे आज आने दो, और कुछ बच्चे होने के बाद मैं फिर से ये टॉपिक रिवाइज करने वाला हूँ, ये दोनों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू। नाउ एमसीक्यू ऑफ द डे, बल्ज कहाँ पे हुआ है? बल्ज नहीं होता है बेटा, दैट हेल्प इन, बल्ज नहीं, वो हॉस्टेरिया है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ एमसीक्यू ऑफ द डे लेता हूं, याद, रुक जाओ, एमसीक्यू ऑफ द डे लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ठीक है दोस्तों? एमसीक्यू ऑफ द डे, और एक इंपॉर्टेंट बात है की गुगल पेजवर गेला तर ॲश्युरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी आहे, ओके, गुगल पेज आहे, तर जरूर तुमचे कमेंट्स तिथं फीडबॅक द्या, तुम्ही तुम्हाला काय वाटतंय, तर ॲश्युरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी बद्दल, लेक्चर बद्दल, माझ्याबद्दल तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आहे, तर ते जर तुम्ही जर तिथं रिव्ह्यू दिले तर त्याचा फायदा होईल, आलं लक्षात? तर तेवढी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, ठीक आहे? तिथं जाऊन तुम्ही तिथं ॲश्युरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजीचं एक पेज आहे, गुगल सर्च करा, आणि नुसतं रेटिंग द्या, नुसतं स्टार रेटिंग न देता 4 गोष्टी लिहा तिथं, आलं लक्षात? तुम्हाला माझे टीचिंग वगैरे कसे वाटतंय, डीपीपी कसे वाटायला लागलेत, डीएनआरपी सेशन आपण अगोदर घेतलं होतं ते तुम्हाला कसं वाटतंय, ते पण आपण घेणार आहोत नंतर, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही जरूर लिहा. प्रत्येकाने जरी एक एक कमेंट जरी लिहिली तरी पण मला ते कळेल की तुम्हाला कुठपर्यंत हे येतंय, ओके? सो एमसीक्यू ऑफ द डे बात करते दोस्तों, एमसीक्यू ऑफ द डे, आणि युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यामुळे काय होतं तुम्हाला लगेच ते नवीन व्हिडिओ ऍड झाला की कळतं, ओके? एआयबी युट्यूब चॅनल आहे, त्याला पण सबस्क्राईब करा, नवीन व्हिडिओ आला तुम्हाला लगेच कळेल. एमसीक्यू ऑफ द डे नंबर 1 दोस्तों, that is maximum saliva is secreted by parotid glands, number 1. नंबर 2, मीजल जो है, मीजल्स is viral disorder, measles is a viral disorder which affect parotid glands, which affect parotid gland. Number 2, that is
that is myenteric plexus. Myenteric plexus are located, myenteric plexus are located in muscularis. Myenteric plexus are located in muscularis and mainly control the secretion of digestive juice. Secretion of digestive tract. Mainly control the secretion of digestive tract. That is myenteric plexus 1, 2, 3, 4. 4 ये है दोस्तों, that is all four layers of alimentary canal. All 4 layers of alimentary canal have same structure, have same structures. Okay, all 4 layers of alimentary canal have same structure throughout its length, from esophagus to rectum. Number 5 दोस्तों, that is number 5, that is Wirsung duct. Wirsung duct is the main pancreatic duct. Wirsung duct is the main pancreatic duct. Wirsung duct is the main pancreatic duct. Now select the correct statement. Select the correct statements. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सोचो. आयुष, स्वराज, रसिका, वेदिका, वेदांत, वेदांश. ओके, बहुत सारे लोग सही लगा रहे हैं अनुमान. बहुत ही बढ़िया अथर्व, बहुत ही बढ़िया आयुष. ऋतुजा सोचो बेटा. अमेश बहुत बढ़िया, अमेश. लकाश, वृशाली. ओके, सन्वी सोचो. कहीं तो भी गूगली किया है, कोई तो भी मैंने चेंज किया रहता है कुछ ना कुछ, और यही होता है. यही मैं क्या कर रहा हूं, आप कितना अच्छी तरह से ध्यान देते हैं और कितना अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ये समझ में आता है आपके आंसर से. तो चलो वन बाय वन. मैक्सिमम सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? पहली स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. ओके दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है. मैक्सिमम सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय नॉट पैरोटिड ग्लैंड. ये है दोस्तों, दैट इज सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड. सब मैक्सिलरी ग्लैंड. दिस विल बी द आंसर. नाउ मीजल्स इज अ वायरल डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट. नो डाउट कि मीजल वायरल डिसऑर्डर. मीजल मींस गोवर. गोवर जो आजार होता है ना, वो मीजल है दोस्तों. मीजल नो डाउट ये वायरल डिसऑर्डर है और वो पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट नहीं करता है. वो है दोस्तों मम्स इज द वायरल डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करने वाला मम्स है. मीजल भी वायरल डिसऑर्डर. तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. मायंटेरिक प्लेक्सस आर लोकेटेड इन मस्कुलरिस. यहां तक वो ठीक है, बट मेनली कंट्रोल द सीक्रेशन. नहीं, वो सीक्रेशन नहीं करता है. कंट्रोल व्हिच कंट्रोल द पेरिस्टालसिस, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंट्रोल करता है मायंटेरिक प्लेक्सस. तो ये भी गलत है. 4 नंबर ट्रू और फॉल्स. ऑल 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैव सेम स्ट्रक्चर थ्रू आउट इट्स लेंथ. ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है. दे शो सम मॉडिफिकेशन, जैसे कि सीरोजा इज एब्सेंट इन एसोफेगस and there is an extra oblique muscle layer present in stomach below the circularis muscle. So they do not show same. They have different structure throughout its length. Or Wirsung duct is the main pancreatic duct. This is the correct statement. Wirsung duct ये main pancreatic duct है और Santorini ये accessory pancreatic duct है. ये pancreatic duct क्या है, ये किसके साथ जुड़ती है, कैसे बनती है हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, कल बात करेंगे.
ऑडी नाम तो सुना होगा आपने गाड़ी का, तो ऑडी की बात करेंगे, ऑडी में जर्नी करेंगे, कौन से रोड है, कैसे मिलते हैं, इसकी बात करेंगे, स्टोरी है दोस्तों। सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यू ऑफ द डे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा स्वराज। ओनली 5 इज करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, पर बहुत सारे लोगों को लगा कि थर्ड भी करेक्ट है, पर वो सिक्रेशन और मूवमेंट में पहचानना भूल गए, फंक्शन भूल गए। ओके ओके, मुझे पता है वेदांश। ओके, ब्लैडर जब भी आएगा वो स्टोरेज ऑर्गन होता है। ओके, ब्लैडर जब भी आता है स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक है। मंडे या फिर ट्यूसडे से, ऑलमोस्ट मंडे या फिर ट्यूसडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसका मतलब वो नई बैच ही है दोस्तों, नई बैच ही है। ओके, अगर कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूं, क्योंकि इतना सारा टाइम अपने पास है नहीं कि हर एक बैच नहीं ले लो, हर एक बैच नहीं ले लो। तो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये टॉपिक आपको पहले से पढ़ाया जाएगा, तो आप उस टॉपिक से पहले से शुरू करते हो, पहले से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। उद्याची की टेस्ट आहे, लक्षात ठेवा, तिसरी टेस्ट आहे, टॉपिक है फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो मैंने आज तक पढ़ा है, आज दोपहर के लेक्चर में जो भी होगा, वायरसेस का इंट्रोडक्शन ऑल दैट, वो सब आएगा, आप ठीक तरह से पढ़ते जाओ, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जब ये दोनों टॉपिक कम ये हो जाएंगे दोस्तों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उसके ऊपर हम एक जंबो टेस्ट रखेंगे 360 मार्क्स की, और उसमें हम फास्ट ट्रैक वॉच रखेंगे। जो भी टॉपर आएगा उसको एक फास्ट ट्रैक वॉच गिफ्ट की जाएगी। अभी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फास्ट ट्रैक वॉच मिलते हैं आपको जंबो टेस्ट में। फर्स्ट फास्ट ट्रैक वॉच कौन लेता है, तो देखते हैं। पेपर भी उसी लेवल का होगा, क्वेश्चन भी उसी लेवल के होंगे, तो तैयारी भी उसी लेवल की करना, ठीक है। ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होने के बाद दोनों के ऊपर एक पेपर रहेगा 360 मार्क्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। आपके कुछ डाउट है तो पूछो, माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवून द्या। एसेसरी ग्लैंड मीन्स जो थोड़े से इतने ज्यादा काम के नहीं है, उसे कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। नाउ